Oh, sir. Yes, sir. Yesterday we have yesterday we have studied convolution theorem. Okay, so next here we start, and also one example is also studied yesterday. Now we see some more examples. Find the inverse Laplace transform of the function 1 upon s into s square plus 4. Okay, so by the convolution theorem and verify it by the method of partial fraction. So here we have the two methods. First is the partial fraction method and second is the convolution theorem. Convolution theorem is also used to find out the inverse Laplace transform. Okay, कल हमने find out किया है inverse Laplace transform. तो ये आपके पास function है 1 upon s into s square plus 4. So convolution theorem क्या कहता है? पहले convolution theorem पता होना चाहिए. L inverse of fs into gs, L inverse of fs into gs is equal to f star g of t, where f star g is given by integral 0 to t f of u g of t minus u into du. So this formula involves two functions, fx and f of t and g of t. Now this one function 1 by s upon s into s square plus 4, we have to split this function into two functions, that is 1 by s and second function is 1 upon s square plus 4. So decide fs equal to 1 by s and gs is equal to gs is equal to 1 upon s square plus 4. Okay, हमारे पास दो फंक्शन है fs and gs. So fs, what fs denotes? Fs denotes the inverse Laplace transform of the function f of t, and gs denotes the Laplace transform of the function g of t. So we must know the inverse Laplace transform of fs. Okay, so first find out the inverse Laplace transform of fs. fs is 1 by s, so inverse of 1 by s is 1. Okay, and inverse of gs gives the value of gt. So 1 upon s square plus 4 का inverse transform क्या आएगा? 1 upon s square plus 4, इसका inverse क्या आएगा? It is of the type 1 upon s square plus a square. बताइए, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इस फॉर्मूले का इनवर्स बताइए क्या होता है? 1 अपॉन a 1 upon A sin साइन A T. a t. सो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी इसकी बताओ? 1 अपॉन a की वैल्यू क्या है? 4 दिया है, लेकिन इट विल बी कन्वर्ट टू 2 2. स्क्वायर. ओके, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन ऑफ 2t. सो वी गेट दिस आंसर 1 अपॉन 2 साइन 2t. So we have now f of t and g of t. So by convolution theorem क्या कहता है? L inverse of fs into gs is equal to f star g of t. Okay, so formula is given by 0 to t f of t minus u into gu du. Okay, so now find out first integration from 0 to t. f of t आपके पास है, f of t is equal to 1. f of t is equal to 1. Then f of t minus u, यहाँ पे t इन्वॉल्व ही नहीं है, सो इट विल बी अगेन वैल्यू 1. f of t minus u is equal to 1. नाउ सिमिलरली फाइंड gt is equal to, ये आपके पास है 1 upon 2 sin 2t, 1 upon 2 sin 2t. सो नाउ फाइंड आउट gu is equal to क्या होगा? 1 by 2 sin twice u. So 1 by 2 sin twice u. 1 by 2 is constant, so बाहर निकालो 1 by 2 integration from 0 to t sin twice u du. So integration of sin क्या होता है? Minus cos. So minus cos twice u divided by coefficient of u2 and limit from 0 to t. So 0 to t limit हो गया. Now put here upper limit minus lower limit. तो क्या आएगा? 1 by 2, ये 2 कांस्टेंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा? 1 by 4. ओके, ये हो गया 2 into 2 4 माइनस कॉस 2, अपर लिमिट क्या है? t
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 0 एंड cos 0 की वैल्यू क्या है 1. सो वी गेट वैल्यू 1/4 minus cos twice t plus 1 by using convolution theorem. By using convolution theorem ये आपको आंसर मिला है. Now we will match this answer by using partial fraction method. ओके, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से भी आपका आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. सो वी हैव द फंक्शन fs इंटू जी एस. आपके पास ये फंक्शन है 1/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4. नाउ बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन क्या करना पड़ता है हमको, इसको लिखना पड़ेगा s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4. इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा. इसके रूट्स क्या मिलेंगे, यहां से मिलेगा, एक मिलेगा s इक्वल टू 0 और दूसरा मिलेगा s स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0. अगेन इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ वी हैव टू find out or split out this quadratic equation. Again we will have the two roots of this equation. Now what will be the two roots? Now this will give s square is equal to minus 4. गलती से भी ये s square is equal to 4 and s is equal to plus minus 2 मत लिखिए. ऑलरेडी क्वाड्रेटिक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है. s इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस क्या आएगा 2, प्लस माइनस 2y. फिर से 2 बताया मैंने पहले ही कहा कि गलती से भी प्लस माइनस 2 नहीं होगा, क्या होगा प्लस माइनस 2y होगा. माइनस 4 है यहाँ पे, पॉजिटिव नहीं है. प्लस माइनस 2y दैट इज अ इमेजिनरी नंबर एंड इमेजिनरी नंबर कैन नॉट बी इन्वॉल्वड इन द Laplace transform method. Okay, so it does not have any real root, no real root. real root है क्या, नहीं है. So only this form can be substituted as a divided by s and this is irreducible form and therefore this is written as bs plus c divided by s square plus 4. Okay, then we will find out the value of a, b and c. तो हम कहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे 1/4 1/s माइनस मीन्स a की वैल्यू आपको मिलेगी 1/4. ओके, एंड देन वी गेट s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4. b की वैल्यू मिलेगी आपको, b की वैल्यू मिलेगी अगेन 1/4 एंड c की वैल्यू मिलेगी आपको 0. ओके, ये सभी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, आप यहाँ पे पहुंचोगे. ओके, नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, एल इनवर्स सेपरेट कर लो. टेक एल इनवर्स ऑन बोथ साइड. एल इनवर्स सेपरेट किया, एल इनवर्स ऑफ 1/s क्या होता है 1 एंड एल इनवर्स ऑफ s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4 क्या होता है cos 2t. cos 80 का फॉर्मूला है. दोनों फॉर्म देखो, ये आंसर और ये आंसर मैच हो रहा है एंड देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 आंसर इज सेम एंड देयरफॉर हेंस वेरीफाइड. कुछ प्रॉब्लम है सर ते कॉन्व्होल्यूशन थेरमचं एकदा रिपीट करा. क्या, ते कॉन्व्होल्यूशन थेरमचं वरचं एकदा रिपीट करा. कन्व्होल्यूशन थेरम हा फॉर्म्युला सांगितलाय ना, एल इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस इज इक्वल टू एफ स्टार जी. कन्व्होल्यूशन थेरम कशावर लावतो आपण, प्रोडक्ट ऑफ दोन फंक्शन वरती लावतो, जे आपल्याला दिलेलं आहे एल इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस. फक्त आपल्याला याच्यामध्ये नोन क्वांटिटी पाहिजेत एफ ऑफ टी अँड जी ऑफ टी. तर याच्यामध्ये बघा इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी एफ ऑफ टी मायनस यू इंटू जी यू डी यू दिलेला आहे. फॉर्म्युला आहे कन्व्होल्यूशन इंटिग्रलचा. कन्व्होल्यूशन इंटिग्रल इज गिवन बाय एफ ऑफ टी मायनस यू इंटू जी यू डी यू. याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त व्हॅल्यू पुट करायची आहे, ज्यामध्ये दिला आहे एफ ऑफ टी ची व्हॅल्यू ऑलरेडी मिळाली आहे तुम्हाला. बघा एफ ऑफ टी ची व्हॅल्यू काय आहे 1. सो एफ ऑफ टी मायनस यू पण काय होणार 1च होणार अँड जी ऑफ टी दिला आहे 1/2 साइन 2t. तर जी ऑफ यू काय होणार साइन ट्वाइस यू डिवाइडेड बाय 2. मग काही नाही, इंटिग्रेशन घ्यायचं. काय प्रॉब्लेम पुन्हा, okay. So next let us take next example. Find out the inverse Laplace transform of the following function by using convolution theorem. कन्वॉल्यूशन थ्योरम का यूज करके आपको फाइंड आउट करना है इसका इंटीग्रेशन. अभी आप अगर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करने जाओगे तो इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत बड़ा होगा, इसलिए हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग कन्वॉल्यूशन थ्योरम. तो यहाँ पे देखिए आपके पास फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय
एस स्क्वायर, ये जो फंक्शन है इसको हम ऐसे, ये यहाँ पे क्या दिया है, एफ एस इंटू जी एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर। एस स्क्वायर को मैं अगर एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखूंगा और दूसरा एस इसके साथ अगर लिखूंगा तो कुछ प्रॉब्लम जाएगा क्या? नहीं। सपोज दिस इज फंक्शन एफ एस, ओके, एंड दिस इज फंक्शन जी एस, ओके, एफ एस जी एस हो गया। सो इनवर्स ऑफ दिस गिव्स, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ टी, ओके, यहाँ पे लिख लीजिएगा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या है, कॉस ए टी, एंड यहाँ से क्या मिलेगा आपको, जी टी इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इनवर्स क्या आता है, कॉस बी टी। अप्लाई द कन्वोल्यूशन थ्योरम। फॉर्मूला क्या है, 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। एफ ऑफ टी है अभी आपके पास, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू cos ऑफ ए टी। आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ यू, तो t विल बी रिप्लेस बाय u, सो cos ऑफ ए यू। सिमिलरली g ऑफ t माइनस यू, तो t माइनस यू, t विल बी रिप्लेस बाय t माइनस यू, तो cos ऑफ b इंटू t माइनस यू। नाउ वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ओके, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड करोगे बताओ? आपके पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी कॉस ए यू इंटू कॉस ऑफ बी इंटू टी माइनस यू इंटू डी यू। कैसे फाइंड करोगे इंटीग्रेशन? कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फॉर्मेट में, सपोज दिस इज ए विथ रिस्पेक्ट टू यू है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू यू है, तो टी ए बी ये सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो ये हो गया आपका कॉस ए और ये हो गया आपका cos b। इंटीग्रेशन ऑफ cos a इंटू cos b कैसे फाइंड करते हैं? वी हैव टू यूज फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? cos a इंटू cos b का क्या होता है, वो cos a cos b क्या होता है? और cos a माइनस बी प्लस cos ऑफ a प्लस बी होता है फॉर्मूला 1/2 cos a माइनस बी प्लस cos ऑफ a प्लस बी। तो यहाँ पे देखो अप्लाई करो फॉर्मूला 1/2 cos ऑफ a प्लस बी किया इसने पहले, cos a प्लस बी, तो क्या होगा, au प्लस बी टी माइनस बी यू, एंड cos a माइनस बी क्या होगा, cos ऑफ au माइनस बी टी माइनस माइनस प्लस बी यू। आ गया। अभी यहाँ पे जो कैंसल आउट होता है वो कैंसल करो, मीन्स जो भी कर सकते करो। यहाँ पे कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू u है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, u है, तो सो टेक u फ्रॉम हियर कॉमन, तो क्या होगा a माइनस बी इंटू यू प्लस बी टी एंड टेक आउटसाइड u हियर, तो यहाँ पे क्या रहेगा a प्लस बी इंटू यू माइनस बी टी इंटू डी यू। नाउ इंटीग्रेट दिस, इसको इंटीग्रेट करना है। बहुत डेंजरस क्वांटिटी दिख रही है लेकिन इतना भी डेंजरस नहीं है ये। इसका इंटीग्रेशन क्या है, आपको मैंने बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स। क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, क्या होता है, साइन ए एक्स, बट डिवाइड में क्या लेते, कोएफिशिएंट ऑफ ए एक्स प्लस बी भी करेंगे तो डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लेना पड़ेगा, डिवाइड बाय ए एक्स प्लस बी प्लस कांस्टेंट सी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, वेरिएबल इज यू, सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या हो गया, साइन पूरा एज इट इज डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ यू क्या है, a माइनस बी, एंड यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, सो साइन a माइनस बी इंटू यू प्लस बी टी डिवाइडेड बाय a माइनस बी, और इस साइड में आएगा a प्लस बी। नाउ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे देखो माइनस बी टी क्या होगा, माइनस बी टी एंड प्लस बी टी क्या होगा, कैंसल। एक मिनट, हाँ, अभी यहाँ पे देखो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, इस स्टेप में इंटीग्रेशन लिया मैंने। अभी यहाँ पे अपर लिमिट तो लोअर लिमिट लगाना है। सो फर्स्ट वी हैव टू पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, u विल बी रिप्लेस बाय, क्या पुट करना है वो भी याद रखो, u की वैल्यू है ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट, बिकॉज इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू t। सो जस्ट पुट u बाय t एंड देन वी गेट, फर्स्ट पुट करो यहाँ पे t हो जाएगा, ओके, ये t हो गया, देन यहाँ पे भी t हो जाएगा,
ये दो क्वांटिटी हो गए, माइनस लोअर लिमिट, तो u की वैल्यू 0 लो, तो ये 0 होने के बाद साइन bt डिवाइडेड बाय a माइनस बी, और यहाँ पे क्या आएगा साइन माइनस bt, साइन माइनस bt डिवाइडेड बाय a प्लस बी। अभी हमारे पास ये फंक्शन है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो कैंसल आउट होता है वो कैंसल आउट करो, ओके, एडजस्ट करते जाओ टर्म्स को। तो यहाँ पे देखो माइनस बी टी मिलेगा आपको, माइनस बी टी, और ये प्लस बी टी क्या क्या हो गया कैंसल, तो वी गेट हियर साइन ए टी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। यहाँ पे भी ये बी टी कैंसल आउट होगा, और बाकी क्या बचेगा साइन ए टी डिवाइड बाय ए प्लस बी, माइनस साइन बी टी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, एंड प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस बाहर आने के बाद प्लस माइनस माइनस क्या हो गया बताओ, प्लस माइनस 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 प्लस साइन बी टी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। नाउ ये कैंसल आउट नहीं होगा, साइन ए टी यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए माइनस बी है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए प्लस बी है, तो जहाँ डिनोमिनेटर सेम है वो कॉमन ले लो। क्या रहेगा देखो, यहाँ पे साइन ए टी डिवाइड बाय ए माइनस बी माइनस साइन बी टी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। तो डिनोमिनेटर जो कॉमन ले लो, और न्यूमरेटर में सब्सट्रैक्शन साइन ए टी माइनस साइन बी टी, प्लस डिनोमिनेटर कॉमन है ए प्लस बी, तो ये क्या होगा साइन ए टी माइनस साइन बी टी, सॉरी साइन ए टी प्लस साइन बी टी। एक मिनट, यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है साइड में। क्या किया हमने यहाँ पे u इज इक्वल टू टी पुट किया, तो ये t हो गया, ये भी t हो गया, देन लोअर लिमिट पुट कर लो 0, तो ये 0 हो गया, साइन बी टी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, प्लस क्या हो गया ये साइन u 0 मीन्स माइनस बी टी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, साइन ऑफ ए टी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी प्लस साइन ऑफ ए टी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, यहाँ पे माइनस साइन बी टी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, एंड प्लस, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस माइनस, ओके, एंड देन ये फिर से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस बराबर क्या, दैट इज इक्वल टू बराबर है, ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है। क्या किया हमने, कलेक्ट द लाइक टर्म्स इन द डिनोमिनेटर, a माइनस बी सेम है, तो सिर्फ न्यूमरेटर का सब्सट्रैक्शन साइन ए टी माइनस साइन बी टी, प्लस यहाँ पे क्या होगा डिनोमिनेटर टर्म कलेक्ट करेंगे a प्लस बी, एंड न्यूमरेटर में एडिशन होगा साइन ए टी प्लस साइन बी टी, बट हियर न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तो यहाँ आपके पास दो चॉइसेस है, एक तो डिनोमिनेटर सेम बनाओ, नहीं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करो। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा 1/2 इन ब्रैकेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या होगा a प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए टी माइनस साइन ऑफ बी टी, ओके, प्लस इधर में क्या है a माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए टी प्लस साइन ऑफ बी टी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप पहुंचेंगे ये स्टेप पे, ओके। क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको ये टर्म मिलेगी, ओके। हम डायरेक्ट इस स्टेप पे थे, तो डिनोमिनेटर सेम है, क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या आप इसको कलेक्ट भी कर सकते थे टर्म को, सॉरी कैंसिल आउट हो गया, ये कॉमन ले लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स आपका क्या हो गया ये डिनोमिनेटर सेम बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर में आ गया। अभी हम क्या करेंगे ब्रैकेट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा ए साइन ए टी
माइनस a इंटू साइन बी टी। नेक्स्ट b से मल्टीप्लाई करो, b इंटू साइन ए टी माइनस b इंटू साइन बी टी। सिमिलरली हियर ऑल्सो, ओके। एंड देन यहाँ पे देखो माइनस a साइन बी टी माइनस a साइन बी टी कैंसिल होगा, b साइन ए टी प्लस एंड माइनस b साइन ए टी माइनस क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। जो बची है टर्म वो कलेक्ट करो, a साइन ए टी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो a साइन ए टी प्लस a साइन ए टी क्या हो गया, ट्वाइस a साइन ए टी। एंड यहाँ पे है माइनस b साइन बी टी माइनस b साइन बी टी क्या होगा, माइनस 2b साइन बी टी। तो टेक 2 आउटसाइड, ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट होगा, ये 2 और ये 2 क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। बाकी आंसर क्या मिलेगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए साइन ए टी माइनस बी साइन बी टी। ठीक है, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन था। किसी को प्रॉब्लम है क्या? नो सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, सो No, नेक्स्ट sir. एग्जांपल देखो, लास्ट fs into gs is equal to 1 upon s square plus a square। यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, सॉरी, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये मेरा एफ एस हो जाएगा और ये मेरा जी एस जो कि सेम है। ओके, सो नेक्स्ट वी विल टेक हियर inverse of this for both the function will be same। so inverse of 1 upon s square plus a square, इसका inverse क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है 1 upon a sin a t, so 1 upon a sin a t। so f of t and g of t will have the same value। apply convolution theorem। convolution theorem क्या कहता है कि inverse Laplace transform of fs into gs is equal to क्या होता है, f star g, and then use the definition of convolution integral। f star g means integration from 0 to t f of u g of t minus u du। f of u, here both the functions are same and therefore just replace t by u first, तो ये क्या होगा 1 by a sin a u, and in the next term g of t minus u, that means t will be replaced by t minus u, so we get 1 by a into sin of a into t minus u। अभी सिर्फ आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना आना चाहिए, इंटीग्रेशन अगर सॉल्व हो गया तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो 1 by a into 1 by क्या हो गया, 1 by a square which is constant, take outside the integration sign, so we get 1 upon a square 0 to t sin au into sin of multiply by a, so we get sin at minus au। so कैसे फाइंड करोगे इसका इंटीग्रेशन बताओ, sin au into sin at minus u कैसे फाइंड करोगे? आंसर तो लिख के दिया है पेज के ऊपर, सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है कैसे आया वो स्टेप, बताओ। हम पहुंचे इस स्टेप पे, तो ये किस फॉर्मेट में, इट इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। कैसे करते हैं, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट फॉर्मूला फॉर साइन ए इंटू साइन बी, क्या होता है 1/2 कॉस ऑफ, एक मिनट, 1/2 कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस, वहां पे प्लस था अभी माइनस, कॉस ऑफ a प्लस बी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन ए इंटू साइन बी। साइन ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे ए यू, बी की वैल्यू क्या होगी ए टी माइनस यू, तो कॉस ए माइनस बी 1/2 बाहर ले लो, 1/2 कॉस ऑफ ए यू माइनस बी ए टी माइनस यू माइनस कॉस ए प्लस बी मीन्स क्या होगा, कॉस ऑफ ए यू प्लस ए टी माइनस यू। जस्ट सॉल्व दिस, यहाँ पे देखो क्या होगा, ए टी सॉरी ए यू माइनस माइनस प्लस होगा, वहां पे कैंसिल होता था, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ए यू प्लस ए यू क्या हो गया, ट्वाइस ए यू माइनस, ओके है। एंड यहाँ पे देखो कॉस ए यू और ये माइनस ए यू मिलेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी क्या बचेगा यहाँ पे ओनली ए टी। इंटीग्रेट दिस विथ रिस्पेक्ट टू यू, ये याद रखिए विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन क्या है, यू है, तो बाकी जो वेरिएबल्स रहेंगे टी हो या ए है या बी है वो क्या रहेंगे, सब कांस्टेंट रहेंगे।
तो सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेशन लेना है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या है, साइन ट्वाइस au माइनस at एंड डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u क्या है यहाँ पे ट्वाइस है, माइनस इस टर्म में u है क्या, यहाँ पे u नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इट विल बी कांस्टेंट cos 80 एज इट इज रखो, ये cos 80 है, ओके cos 80 कांस्टेंट, यहाँ पे बचा क्या सिर्फ 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है u विथ रिस्पेक्ट टू u है, तो सो यहाँ पे आपको मिला u इंटू कॉस ऑफ 80 0 टू t। नाउ पुट हियर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो याद रखो 1 अपॉन ट्वाइस a स्क्वायर, फर्स्ट पुट हियर अपर लिमिट, दैट मीन्स क्या पुट करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्या पुट करना है यहाँ पे u की वैल्यू पुट करना है 0 टू t, फर्स्ट पुट अपर लिमिट, सो क्या मिलेगा sin twice at minus 80 divided by twice a minus u will be replaced by t, तो ये क्या होगा t into cos of 80 अपर हो गया, नाउ पुट हियर लोअर लिमिट माइनस cos of u will be 0, so sin of minus 80, sin of minus 80 divided by twice a and here 0, तो ये क्या हो जाएगा minus 0 into something is 0, तो 1 upon twice a square in bracket, देखो sin twice 80 twice 80 minus 80 क्या हो गया 80 divided by twice a, ओके ये पूरा डिवाइड में twice a माइनस t into cos of 80 माइनस sin twice a divided by माइनस से b बाहर में sin of minus थीटा माइनस sin थीटा, तो माइनस माइनस प्लस sin 80, ये क्या होगा प्लस sin 80 divided by twice a, so that is equal to 1 upon twice a square। हाँ ये सेम टर्म है sin 80 डिवाइड बाय ट्वाइस है, sin 80 डिवाइड बाय ट्वाइस है, तो क्या होगा 2 sin 80 डिवाइडेड बाय ट्वाइस है माइनस t cos 80, ओके ये 2 क्या हो गया कैंसल, so we get 1 upon twice a square, a भी बाहर ले लो क्या होगा a square into a cube into sin 80, यहाँ पे a नहीं था तो ये क्या होगा 80 into cos of 80, इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ओके किसी को प्रॉब्लम, तो यहाँ पे कन्वोल्यूशन थ्योरम हम स्टॉप कर देंगे क्लास में, नेक्स्ट मींस यहाँ पे खत्म हो गया आपका कन्वोल्यूशन थ्योरम का टॉपिक, ओके किसी को प्रॉब्लम, नो सर। आपके असाइनमेंट्स रेडी रखिए, कभी कभी भी मैं बुलाऊंगा, ठीक है प्रेजेंटी स्वाति प्रेजेंट सर। गूगल प्रेजेंट सर। साइली प्रेजेंट सर। राखी प्रेजेंट सर। दीपावली प्रेजेंट सर। प्रणय प्रेजेंट सर। ठीक है।